Hello guys, welcome back to this another video, and in this video we are going to solve the next problem of this sheet, FRAS DSA sheet. We will solve the decode ways. This is medium level problem on lead code. Let's open it, and yeah, I have already solved this. Let me see. Oh, too many attempts. Oh, last solved on 27. Okay, fine. Now, so the problem states that you have intercepted a secret message encoded as a string of numbers. The message is decoded via the following mapping: 1A, 2. So yeah, this is basically the positioning of the alphabet letters on the English alphabet, right? However, while decoding the message, yeah, like for A, it's 1, B2, C3, D4, E5, similarly Z26. It will start from 1 and goes to 26. However, while decoding the message, you realize that there are many different ways you can decode. Okay, so for example, they have already given example 11106 can be decoded into multiple ways. E is AF, K is EF, right? So you have to find out the number of ways to decode it. For S equals to 1, 2, 2, 2 to 6, 3. For 0, 6, 0. Okay, so let's try to uh, understand this problem on the whiteboard. Let me share this screen and I will try to explain you. So let's take the first one. S equals to 1, 2. 100%. So we have S equals to 1, 2, right? So for 1, 2, if you try to map it, let me map it. So for 1, we have already, let me first write it. A means 1, B 2, C 3, similarly K 11, and Z 26. Fine. So for S equals to 1, 2, you can decode. You can say 1 means A, 2 means B. So you can decode this 1, 2 as AB. This is first way. Can you find the second way? Yes, we can find, because instead of taking this as single, you can take both. And if you take both, 12 represents L. So L is the second way. Is there any other way? No, there is no other way for decoding this string. So in this case, answer is 2. Let me take one more example. So if S is equals to 2 to 6, in this case, how many ways? So again, for 2, you can write B. If you take all the letters, characters of this string as a single letter, so you can write B, B, and for 6, it's F. This is first way. Or one more option. You can take these 2 and 1, 6. In this case, now the answer is V, F. This is second way. Or also you can take one more. You can take it in one more way. Just take this 2 and this 2, 6. In this case, it's a BZ. This is a third way. So this is how you can find out the answer for that. So let's think how we will solve this in dynamic programming way. So I have already uh, discussed the uh, starting three problems in DP way. So you have to just think, you have to just try to map this problem also in the same way. So what we are doing, what were we are doing in the last videos of the other problems. So we start with defining our states. So the first step of solving the problem is defining our steps. Define our steps. So again, we will start with dp of I. dp of I को क्या बोलेंगे यहाँ? Number of ways to decode a string
विथ आई कैरेक्टर। मतलब कि हमारे पास सिर्फ फर्स्ट आई कैरेक्टर है, सो डीपी ऑफ आई विल टेल कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज टू डिकोड द स्ट्रिंग if we have just I character, first I character, we have just with first. So this is the definition of our DP. So in this way, we will just assume this, we will just take this definition and try to find out the answers for smaller problems, right? The second thing is, या आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि पहले हम एक से स्टार्ट करके चलेंगे। अगर हमें फ्यूचर में वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द मैपिंग, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द फॉर्मूला टू connect your DP states with previously computed state, then we will try to introduce more state variables. But now first we will try to start with only simple state variable, that is only one state variable in only manner, right? Second thing is try to find out answers for smaller values। तो देखो स्मॉलर वैल्यूज के लिए आंसर क्या होगा। हमारे पास जस्ट समझो कि हमारे पास सिर्फ फर्स्ट एक एलिमेंट है, फर्स्ट एक कैरेक्टर है, सिर्फ एक कैरेक्टर है हमारे पास। जैसे इसमें जैसे मान लो 2 to 6 में ही विल टेक दिस, तो हमारे पास जस्ट दिस ये 2 अवेलेबल है, हमारे पास एक ही कैरेक्टर है। तो डीपी ऑफ वन क्या बोलेगा? डीपी ऑफ वन मीन्स नंबर ऑफ ways to decode a string with first one character, that is just 2, right? तो हमारे पास सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, तो इन दिस केस आंसर व्हाट विल बी द आंसर? डीपी ऑफ वन विल बी ऑलवेज वन, ऑलवेज वन। तो ये हमारे पास एक ही कैरेक्टर है। जब एक कैरेक्टर है तो इट कैन बी आइदर फ्रॉम 0 to 9, ठीक है, 0 to 9। बट हमको इस जीरो को इग्नोर करना है, वी विल नॉट टेक दिस जीरो, तो हम सिर्फ वन से, क्योंकि जीरो की कोई मैपिंग नहीं है। तो इफ तो डीपी ऑफ वन वन कब होगा? जब हमारा एस टी आर जो स्ट्रिंग दिया गया है उसका जीरोथ एलिमेंट विल बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वी विल चेक। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो there is always only one way to solve this problem. Now let's go to dp of 2. dp of 2 means we have this 2 2, we have only first two characters। तो अगर हमारे पास फर्स्ट टू कैरेक्टर है तो व्हाट हाउ यू कैन जनरेट द आंसर? सी, हमारे पास सिर्फ पहला दो कैरेक्टर है, तो हमें डीपी ऑफ वन का आंसर पता है, इट इज 1, ठीक है। अब जब एक कैरेक्टर था तो हमारे पास एक ही तरीका था सॉल्व करने का। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन मोर कैरेक्टर। सो अगर इस कैरेक्टर को देखो, इस दो को तुम चेक करो, ये जो दो है, और दो के लिए मैपिंग क्या है? बी। सो लेट्स से डीपी ऑफ वन के लिए लेट्स से सम एक्स वेज थे, मान सकते हो एक्स वे, मान लो ए बी था, बी सी था, ए डी था, और तुम दिस इज एक्स वे थे तुम डीपी ऑफ वन के लिए मीन्स, और तुमने एक और कैरेक्टर मतलब एस टी आर टू को इंट्रोड्यूस किया, तो इसकी वैल्यू जैसे यहाँ इस केस में टू क्या हो सकता है? इट कैन बी जस्ट अज्यूम दिस बी, तो बी है, तो ये बी कितना कितना मतलब सिर्फ हमारे पास फर्स्ट टू कैरेक्टर, तो कितना नंबर ऑफ वेज होगा हमारे पास? जितना वेज इस वन के लिए है उतना ही वेज हमारे पास टू के लिए भी होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इस बी को आप यहाँ अपेंड कर सकते हो, यहाँ अपेंड कर सकते हो, यहाँ अपेंड कर सकते हो, तो आपका ये ए बी बी, बी सी बी एंड ए डी बी हो जाएगा। तो जितना वेज इसके लिए होगा उतना वेज इसके लिए भी होगा। तो डीपी ऑफ टू के केस में क्या होने वाला है कि हमारे पास डीपी ऑफ वन के लिए एक वेज है, नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन मोर कैरेक्टर एंड इट इज
contributing to the number of ways, same number of ways, तो dp of 2 जो हो जाएगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा dp of 1k. नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू नोटिस. अब देखो, अब हमारे पास क्या था, टू टू था. हमने इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी स्टोर था, यहाँ तक का आंसर हमारे पास ऑलरेडी स्टोर था, दिस आंसर इज ऑलरेडी स्टोर्ड. फिर हमने एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, इसकी जो वैल्यू थी उसको ऐड करने से जितना नंबर ऑफ वेज था वो हमारा ऐड हो, जितना इसका वेज था उतना ही हमारा इसका भी वेज होगा. लेकिन अब हमारे पास there is one more case. Now the length of this is more than 2, more than equal to 2. Now you can also take these two, this you can also take these two in एक साथ. तो उस केस में क्या होगा, ये एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेगा. 22 मीन्स वी, राइट. 22 मतलब कि, अब बताओ, अब तुमने 22 की वैल्यू दी, तो अगर तुम जस्ट इसको इसको जो प्रीवियस अप्रोच हमने सीखा, तो उससे क्या सीखा कि ये अब हमारा ये पूरा एक नया कैरेक्टर को कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो ये अगर पूरा एक नया कैरेक्टर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ का जो आंसर होगा, ये प्रीवियस डीपी, सपोज कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है, तो इसके जो डीपी का जो आंसर था, ये डीपी मान लो ये जीरो था, डीपी जीरो का जो आंसर था, तो ये जितना आंसर डीपी जीरो का था उतना ही वेज इस ये बनेगा. लेट से कि सेम इस ये वाला चीज समझो कि कैसे हमने, कि अगर किसी के लिए एक्स वेज है और हम एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कैरेक्टर उस प्रीवियस वाले आंसर में सबके साथ अपेंड होके सेम नंबर ऑफ वेज क्रिएट करेगा. तो जितना वेज डीपी ऑफ जीरो का रहेगा उतना ही हम इसमें इसके आंसर में ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे अगर फाइनल देखो तो dp of 2 जो होगा वो हो जाएगा dp of 1 प्लस dp of 0. ये कैसे आया, क्योंकि वो जो 2 था वो एक कैरेक्टर जो हमने नया 2 इंट्रोड्यूस करा वो हमारा बी को रिप्रेजेंट कर रहा था. dp of 0 क्यों ऐड किया, क्योंकि जो 22 था वो भी हमारे एक नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा था, v. दैट्स व्हाई वी हैव एडेड. नाउ बस finally you will able to get it when I will try to solve the dp of 3. Now let's try to find out dp of 3. dp of 3 यहाँ पे लिख लेते हैं 226. तो हमारे पास अभी के आंसर्स हैं, अभी हमारे पास आंसर्स हैं, रुको इसको मार्क कर लेने दो. पहले हमारे पास dp of 0 है 1, एंड dp of 2 है dp of 1 है 1, एंड dp of 2 है 1 + 1 2. सो दिस इज इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, ये है 2, राइट. नाउ dp3 पे चलते हैं. dp3 हमारा 226 है. अब देखो, हमने ये एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया किया कि नहीं किया. जब ये नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया तो इसकी वैल्यू क्या है, f है. सो ये f, नया f आने की वजह से जो यहाँ पे 3 कैरेक्टर के लिए जो नंबर ऑफ वेज होंगे, कितने होंगे, जितने भी वेज, जब हमारे पास स्ट्रिंग बस इतनी थी, सिर्फ 2 था, तो उसके जितने भी नंबर ऑफ वेज थे, 2 वेज थे, तो जितने भी नंबर ऑफ वेज थे उसके उतने ही नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इसके, क्योंकि ये f उन सब में जाके चिपक जाएगा. ठीक है. तो dp of 3 जो होगा वो क्या होगा, dp of 2 ही होगा. नाउ अगेन अगेन हम सिर्फ ये ही नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास मोर देन, क्योंकि हमारे कैरेक्टर 1 से स्टार्ट होते हैं 26 तक जाते हैं, तो हम ट्राई आउट करेंगे क्या हम पिछले वाले को भी अपेंड करके ऐसा कर सकते हैं क्या. तो अब देखो, अब इस 2 to 6 में इन दोनों को तुम ट्राई आउट करो. क्यों करो, क्योंकि वी हैव टू एटलीस्ट ट्राई फॉर 2 consecutive characters, because we have to check whether it is less than 26 or not, right. So
इस 26 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो ये 26 एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है z, विच इज वैलिड। इफ दिस इज वैलिड तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड ये z, जितने भी आंसर इस यहाँ तक के लिए हैं उसके पीछे जाके चिपक जाएगा। तो इस केस में भी आ जाएगा dp ऑफ 1। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा 2 to 6 के केस में? तो dp ऑफ 2 हमारा आया था 2 और dp ऑफ 1 आया था 1, और ये हो जाएगा 3। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी हमने प्रीवियस आंसर्स आंसर्स कंप्यूट करके रखे हुए हैं, और बस हम ट्राई आउट कर रहे हैं कि अगर हमारा ये अगर पर्टिकुलर जो है कैरेक्टर है वो वैलिड है, वो सारे हम किस पे चेक करेंगे? सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर एंड लास्ट टू कैरेक्टर्स, क्योंकि हमारे पास कोई भी लेटर की मैपिंग नहीं है जो मोर देन 2 लेटर्स की है। 2 में भी सिर्फ 26 तक की मैपिंग है, सो सिर्फ हम वही चेक करेंगे। ठीक है, गॉट इट? आई होप यू गॉट द आइडिया। सो अगर जनरल फॉर्मूला देखो तो डीपी ऑफ जो आई होगा वो पहले तो डीपी ऑफ i-1 के इक्वल होगा, और ऑल्सो डीपी ऑफ आई में हम जोड़ेंगे क्या? डीपी ऑफ i-2। बट ये कब जोड़ेंगे? जब i-1 एंड i-2 द characters at i-1 and i-2 is making valid char, समझे? या इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 to 26 के बीच में रहनी चाहिए, तब हम ये वाली ऐड करेंगे, अदरवाइज देर इज नो नीड टू ऐड। बट दिस वी विल डू ऑलवेज, बिकॉज देर इज ऑलवेज लेटर विद द सिंगल कैरेक्टर। बट इसमें भी वी हैव टू इग्नोर कि इफ कोई कैरेक्टर जो मतलब जो स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो अगर जीरो है, so we have to ignore, we will not consider it. If it is just a single, this zero can be, अगर जैसे मान लो अगर हम एक एग्जांपल लें 1 and 0, ये वाला भी एग्जांपल ले लो, ऐसे 1 0, so for 1 if there is 1 तो dp of 1 क्या होगा? dp of 1 क्या होगा? dp of 1 क्या होगा? और dp of 1 होगा तुम्हारा एक। सिर्फ तुम्हारे पास एक ही तरीका है, एक ही सिर्फ तुम्हारे पास एक ही तरीका है ना। अगर तुम डीपी ऑफ 2 पे जाओ, इन दोनों पे जाओ, तो डीपी ऑफ 2 पे जाओ, तो जीरो के लिए कुछ है, जीरो के लिए कोई कैरेक्टर है। तो अगर जीरो के लिए कोई कैरेक्टर नहीं है तो ये हम, so we cannot, because there is no character defined for zero, we cannot add it into the others, we cannot add the value, append it into the previous answers, no. But also हम सिर्फ यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, हम जीरो के लिए जब सिंगल आ रहा है तो हम उसको चेक नहीं करेंगे, मतलब उसका आंसर नहीं स्टोर करेंगे। बट जब ये किसी के साथ आ रहा है, इट्स 1 0, तो दिस इज मेकिंग वैलिड वैलिड कैरेक्टर। सो 10th नंबर का जो भी कैरेक्टर होगा उसका हमारे पास आंसर होगा। अगर ये ऐसे आ रहा है तो यहाँ का जो प्रीवियस डीपी का आंसर होगा, अगर यहाँ पे इसके पहले जो भी आंसर होगा उसको हम ऐड कर देंगे। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि फंडा क्या चल रहा है, इसके अंदर चल क्या रहा है। अब डायरेक्टली कोड पे चलते हैं एंड कोड लिखते हैं इसका। सो अगेन आई विल डिफाइन द वेक्टर of int, and I will say कि dp as dot size plus 1, I will give one extra just for safety. So what does it mean? कि number of ways to decode the string if we have first I character in in the string, right? dp of I means, ठीक है। सो ना हमने डिफाइन कर दिया, फर्स्ट टास्क डन। सेकंड थिंग सेकंड थिंग इज
सेकंड थिंग कि तुम अपना स्मॉलर वैल्यूज के लिए आंसर लिखो डीपी ऑफ जीरो। डीपी ऑफ जीरो क्या होगा? बस कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है तो डिकोड करने का एक तरीका हमेशा होता है, देयर इज वन वे टू ऑलवेज डिकोड। एक एक तरीका है डिकोड करने का। नाउ डीपी ऑफ वन, हमारे पास सिर्फ एक कैरेक्टर है तो क्या होगा? वन होगा। बट कब वन होगा? व्हेन दैट char is not zero, because zero, there is no mapping for zero, so we will not just directly write dp of 1 as 1 if as of 0, as of 0, because here we are using the one base indexing, but our string is zero based. So in the problem we are using one base, तो हम बस as of 0 को चेक करेंगे the first element। वो समझो, मैपिंग प्रॉपर रखो, देर इज नॉट मच डिफिकल्टी इन राइटिंग दिस इंडेक्सेस, जस्ट थिंकिंग प्रोसेस शुड बी क्लियर। तो एस ऑफ जीरो अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो उस केस में हमारा जो डीपी ऑफ वन होगा वो क्या होगा? वन होगा। नाउ आई विल रन अ फॉर लूप फ्रॉम टू टू आई, बिकॉज हमने अपना फॉर्मूला जनरेट कर लिया था कि सिर्फ प्रीवियस टू वैल्यूज पे ही एट मैक्स प्रीवियस टू वैल्यूज पे ही डिपेंडेंट है। तो I less than equals to s dot size not less than equals to I less than s dot size, sorry, it's less than equals to s dot size I plus plus। now हमने क्या बोला कि dp of I होगा if str s of I not equals to zero, if this is not equals to zero, तो हमारा जो dp of I होगा dp of I इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई माइनस वन, क्योंकि जो लास्ट कैरेक्टर है वो वैलिड कैरेक्टर है और वो सारा कैरेक्टर जो हमारे पास आई माइनस वन तक के आंसर्स हैं उन सबके साथ अपेंड हो सकता है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। नाउ वी हैव वन मोर केस कि हमने तो सिर्फ लास्ट कैरेक्टर लिया, जब जब हम लास्ट के दो कैरेक्टर ले रहे हैं तो दो कैरेक्टर भी हम कब ले सकते हैं? जब हमारे पास वो जो कैरेक्टर है, या तो देखो मैं लिखता हूँ एस ऑफ आई इक्वल्स टू वन। ठीक है, एस ऑफ आई माइनस वन इक्वल, अगर देखो तो वन थिंग, या हमने टू से स्टार्ट किया है डीपी ऑफ आई, बट ये जो हमारा एस है ये माइनस वन रहेगा इसलिए। ठीक है, समझे क्यों? क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है, ठीक है, लास्ट कैरेक्टर कुछ भी हो तो जो हमारा एस माइनस टू कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है? जो हमारा एस माइनस टू कैरेक्टर है, एस ऑफ आई माइनस टू, अगर वो इक्वल्स टू वन है, ठीक है, वो इक्वल्स टू वन है, तो हमारा जो एस ऑफ आई माइनस वन मतलब जो लास्ट कैरेक्टर है वो कुछ भी हो, आइदर जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, सिक्स हो, सेवन हो, नाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर हमारा जो एस ऑफ आई माइनस टू है वो क्या है? एस ऑफ आई माइनस टू वो क्या है? वो है इक्वल्स टू टू। तो उस केस में हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है एस ऑफ आई माइनस वन, उसको होना पड़ेगा लेस देन इक्वल्स टू सिक्स, लेस देन। तो दिस इज द वैलिड कंडीशन, दिस इज ओनली वैलिड कंडीशन। यही एक कंडीशन है जिसमें हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके लिए जो हमारा डीपी ऑफ आई होगा क्या होगा? हम उसमें प्लस इक्वल्स टू कर देंगे डीपी ऑफ आई माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे बस जो हमारा एस का जो कैरेक्टर है वो हमने
जीरो बेस इंडेक्सिंग में लिया हुआ है और हमारा जो डीपी ऑफ आंसर है वो हमने वन बेस इंडेक्सिंग में लिया है, तो इसलिए आई मीन्स आई माइनस वन, इधर आई मीन्स सेम आई माइनस वन, ठीक है, राइट, गॉट इट. Now we have solved this problem and just return the dp of s dot size. Let's try to run it. देखो, solved, giving correct answer. व्हाइट बोर्ड पे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कस नहीं किया था. टीसी विल बी order of n and sc will be order of n. n is size of the string s. ठीक है, सबमिट करके देखते हैं. And successfully submitted, and this is the answer for the problem. Thank you so much for watching this video. See you soon in the next video. Thank you.